کیونکہ اہل کتاب جو سے تھے وہ جس قسم کے شرک میں مبتلا تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ تعالیٰ کے مطلب ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ان کا بیٹا بنا کے نعوذ باللہ۔ تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب کہنا چاہیے قوم تھی قریش مکہ، تو جو کہ مشرک تھے وہ اس قسم کی مطلب بات کے اوپر مطلب جھگڑا کرتے تھے کہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ جو حضرت عیسیٰ کو جو کہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اس طرح سے پوجا جا رہا ہے، تو پھر جو ان کے بت ہیں وہ بھی تو پیچھے سے کوئی نیک لوگ ہی ہیں اور اسی طرح سے وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ تو اس بات کے اوپر یہ آیات ہوتی ہے کہ آپ کا ان سے یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض ہے کہ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑا آلو۔ تو یہ جو جس بھی طرح سے بات بیان کر کے لے کے آ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ اپنی غلط بات کو جو ہے صحیح ثابت کرنے کے لیے دوسروں میں غلطیاں نکال کر کے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے تھے۔ تو عیسیٰ بھی صرف اللہ کے ہی بندے ہیں جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشانی قدرت بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے ہی ہیں، لیکن ان کی پیدائش کس طرح سے ہوتی ہے، لیکن بہرحال اگر وہ فرق طریقے سے معجزانہ طریقے سے ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اپنا قدرت کا نشان کے طور پہ پیش کیا تھا کہ اللہ ایسے بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ نبی کی جگہ پہ کوئی فرشتے پیدا کرتے اور ان سے یہ کام لیتے نبوت کا۔ تو یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، اور یہ نہیں کہ دیکھیں وہ کتنا عرصہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر چکے ہیں، ہم تو اس کے بھی 1400 سال سے بڑا زائد عرصہ گزر چکا ہے اور ہم اب موجود ہیں، تو اس کا مطلب اگر عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے تو پھر ہم تو بہت ہی نزدیک ہوئے۔ تو بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تمہیں نہ روک دے بلکہ وہ تمہارا سری دشمن ہے، اور جب یعنی کس چیز سے روک دے؟ دین کے اوپر چلنے سے، ہدایت جو کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس کو ماننے سے۔ تو جب یہ عیسیٰ علیہ السلام موضع لائے تو کہا کہ میں تو تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اس لیے لایا ہوں کہ جن بعض چیزوں کو تم اختلاف کرتے ہو انہیں واضح کر دو، اور بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ یعنی کہ جب وہ آئے تھے مبعوث ہوئے تھے تو تب بھی جن کے بارے میں امور کے بارے میں کتاب کے بارے میں جو علماء وہاں پہ اس وقت اختلافوں میں پڑے ہوئے تھے اور جھگڑوں میں، اور کہنا چاہیے کہ وہ انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تو وہ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے آئے تھے جیسے کہا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک لحاظ سے بنی اسرائیل کی طرف جو ہے مبعوث ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد وہ کیا کہتے تھے کہ میں جن باتوں پہ تم اختلاف کرتے ہو میں انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ یعنی کہ وہ اس وقت کے لوگوں کو اس طرح سے اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور میرا اور تمہارا رب فقط اللہ ہی ہے، بس تم اس کی عبادت کرو، یہی راہ راست ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور جب انہوں نے اپنا نبی ہونا ظاہر کر دیا تو اس وقت جو کہنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے جو ہے اس چیز کے اوپر جو ہے ایک نہیں ہوئے، ان کے پیغام کو مکمل تسلیم نہیں کیا، تو بس ظالموں کے لیے خرابی۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگ ان میں سے مسلمان ہو گئے اس وقت، حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئے، اور زیادہ تر میجورٹی جو سی تھی انہوں نے اس چیز سے اختلاف کیا، تو جس چیز کا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور بس ظالموں کے لیے جو سی ہے وہ خرابی ہے۔ اور جو ان کا اختلاف ہے نا جیسے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو، اور جس طرح سے بھی انہوں نے دین سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا، تو اس وجہ سے ان کو ظالم کہا جا رہا ہے، دکھ والے دن کی آفت سے۔ تو دکھ والا دن جو ان سا ہے وہ عذاب جس دن ملے گا، یعنی یوم الدین جس دن کے وہ عذاب کنفرم ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہے کہ وہ اچانک ان پہ آن پڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو، تو اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ میرے بندو، نہ آج نہ تم پہ کوئی ہوگا، نہ خوف ہے نہ تم کوئی غم زدہ ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو یوم محشر ہوگا وہاں پہ تو دوستی نہیں ہوگی، وہاں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور وہاں کا سین، وہاں کا منظر اللہ تعالیٰ پیش کریں، اور جو ہماری آیتوں پہ ایمان لائے تھے اور وہ بھی مسلمان، اور تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش جنت میں چلے جاؤ۔ تو چونکہ وہاں سے ہی پتہ چلے گا کس نے جنت میں جانا ہے کس نے دوزخ میں جانا ہے، تو جو مسلمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلتے ہوئے ہوں گے ان کو یہ حکم ہوگا، اللہم جل منہم آمین، اور ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ تو جنت میں وہاں کے برتنوں میں سونے کا بھی ذکر ہے، تو جس کے جیب میں آئے خواہش کریے، جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں، سب وہاں کام ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہیں آسانیاں جنت کی اور لکشری، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پہ سسے گا۔ اب دیکھیے پہلے ذکر ہو رہا تھا جو فرعون تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کے کنگن کیوں نہیں اترے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ چیز بیان کی کہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ٹیسٹ جو چل رہا ہے اس میں کسی کنگن کا ہونا یا نہ ہونا اہمیت کا حامل نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو جنت ہے جہاں رہنے کی جگہ ہے وہاں پہ پہنچا جائے، وہاں پہ جایا جائے جہاں پہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ تمام معاملات جو سے ہیں، چونکہ شیاطین کو جو ہے وہ قابو کر چکے ہوں گے، تو وہاں پہ تمام معاملات جو سے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت ہی اچھے ہوں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہاں کی جو لکشری کا ذکر ہے، وہاں پہ کنگن، سونے کی کنگن ایک معمولی چیز لگ رہی ہے اس کے آگے، وہاں تو سونے کے برتن ہیں، سونے کے گلاسز ہیں، اور اس کے علاوہ جس چیز کا انسان کا دل کرے وہ بھی اس کو وہاں پہ نصیب ہوگی۔ تو جو دنیا میں لوگوں کو چیزیں ملی ہوئی ہیں اس کا مقابلہ ان آیات سے جنت کی کر لیا جائے تو پتہ چل جائے کہ دنیا کی جو چیزیں ملی وہ کتنی حقیر ہیں۔ یہی وہ بہشت ہے، جنت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنا دیے گئے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا لا جو سے اپنی سنت بالکل کھول کے بیان کر دیا، کوئی دو رائے ہی نہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہے
कि वहाँ पे जो इस दुनिया की जो ज़िंदगी है, वो हमने अल्लाह ताला के हवाले कर दी कि उनकी बात मानेंगे ताकि हम ये हासिल कर सकें। यहाँ तुम्हारे लिए यानी इसी वजह से कहा गया ना कि अमाल के बदले में इसके वारिस बनाए गए हो। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे अमाल, हमारा ज़िंदगी गुज़ारना, हमारा लाइफ़स्टाइल इसके बदले में हमें ये मिलता है। यहाँ तुम्हारे लिए बकसरत मेवे हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। बेशक अल्लाह गुनाहगार लोगों को अज़ाब दोज़ख में हमेशा के लिए डालेंगे और ये अज़ाब कभी भी इनसे हल्का नहीं किया जाएगा। वो इसी में मायूस पड़े रहेंगे। पर हमने उन पर ज़ुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद ही ज़ालिम थे और पुकार-पुकार कर कहेंगे कि ऐ मालिक तुम्हारा रब जो-सा है हमारा काम ही तमाम कर दे। तो लगता है कि जो दोज़ख का जो फ़रिश्ता है उसका नाम बड़ा ताकतवर फ़रिश्ता वहाँ पे पहरे पे होगा। तो वो जो वहाँ पे सबका सरदार फ़रिश्ता वहाँ पे उसका नाम मालिक है, उसको वो पुकारेंगे, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे और वो कहेगा कि तुम्हें तो हमेशा रहना है, यानी कि यहाँ पे अब जिस हालत में हो ये हमेशा के लिए है। तो हम तो तुम्हारे पास हक़ लेकर के आए लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक़ से नफ़रत रखने वाले थे। तो उस वक़्त ये बात उन लोगों पे साबित हो जाएगी कि वो चूँकि हक़ से नफ़रत रखते थे और उन्होंने इस चीज़ का ख़्याल ही नहीं किया, तो अब वो हमेशा उसी जगह पे रहेंगे। क्या उन्होंने किसी काम का पुख्ता इरादा कर लिया है, तो यकीन मानो कि हम भी पुख्ता काम करने वाले हैं। यानी जो मकर बनाए जा रहे हैं, कोई प्रोपेगेंडा तैयार तैयार किया जा रहा है या ये कि जो इनके उलमा और रऊसा और जो आम लोग भी हैं, वो जिस तरीके से भी कोई अमल करने वाले हैं, तो अल्लाह ताला की कहना चाहिए कि हिकमत ये है कि वो उनको करने दिया जाता है। लेकिन ये है कि यकीन मानो कि हम भी पुख्ता काम करने वाले हैं, तो अल्लाह ताला के जब पुख्ता काम होगा, अल्लाह ताला की तरफ से जब वो जवाब मिलेगा, तो वो उन सब पे भारी पड़ जाता है। कि इनका क्या ये ख़्याल है कि हम इनकी पोशीदा बातों और इनकी सरगोशियों को नहीं सुनते? यकीनन हम बराबर सुन रहे हैं बल्कि हमारे भेजे हुए इनके पास से ही लिख रहे हैं। आप कह दीजिए कि बिलफ़र्ज़ रहमान की औलाद होती तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला था। कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस रहमान की औलाद की भी इबादत होती मुकर्रर। तो बात ये है कि बल्कि यकीनन इस बात को मतलब इस तरह से कहा गया कि हम बराबर सुन रहे हैं बल्कि हमारे भेजे हुए इनके पास जो कुछ ही जो है उनके पास जो कुछ है उनके पास ही लिख रहे और आप कह दीजिए कि अगर बिलफ़र्ज़ रहमान की औलाद होती तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला था। आसमान और ज़मीन में अर्श का रब जो कुछ भी बयान करते हैं, इससे बहुत पाक है। अब आप उन्हें इसी बहस-मुबासे और लड़ाई-झगड़े और खेल-कूद में छोड़ दीजिए दुनिया की ज़िंदगी में। तो यहाँ तक कि इन्हें इस दिन से साबका पड़ जाए जिसका ये वादा दिए जाते हैं। ये आसमानों में जो है माबूद वही हैं जो आसमानों में माबूद है और ज़मीन में भी वही काबिल इबादत है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात, उनके अलावा कोई और दूसरा नहीं और वो बड़ी हिकमत वाला और पूरे इल्म वाला है और वो बहुत बरकत वाले हैं, जिनके पास आसमान जो की ज़मीन और उनके दरमियान की बादशाहत है। क़यामत का इल्म भी उन्हीं के पास है। यानी ये वो कब आएगी? हाँ, और उसी की जानिब से सब लौटाए जाओगे। जिन्हें ये लोग जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं और शफ़ाअत करने का इख्तियार नहीं रखते। हाँ, मुस्तहिक जो उनसे हैं वो मुस्तहिक शफ़ाअत वो हैं जो हक़ के बात का इकरार करें और इन्हें इल्म भी हो। अगर आप इनसे दरियाफ़्त करें कि इन्हें किसने पैदा किया है, तो यकीनन ये जवाब देंगे कि इन्हें अल्लाह ने पैदा किया है। तो फिर ये कहाँ से फिर अपने आप को जो है वो उन बुतों की तरफ ले जाते हैं? यानी कि सवाल किया गया है कि कहाँ उल्टे जाते हैं? और इस पैगम्बर का अक्सर ये कहना कि मेरे रब यकीनन ये वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाते। आप इनसे मुँह फेर लें और इन्हें सलाम कह दें, यानी कि इनसे खुदा हाफ़िज़ हो जाएँ, इनसे बातचीत का मज़ीद जौन-सा है ये या दिल के में ये ख़्याल लाना कि फ़ौरी तौर के ऊपर ये इस बात पे ईमान ले आएँगे, तो ये चीज़ ना सोचें। इन्हें अनकरीब खुद ही मालूम हो जाएगा। अब क्या पता कि किसकी ज़िंदगी उस वक़्त कितनी थी और कितनी जौन-सी है वो मतलब वो अपनी बातों को जो बढ़ा-चढ़ा के बयान कर रही हैं, उनकी हकीकत उनको क्योंकि जब किसी की ज़िंदगी खत्म होती है और मौत आती है, तो वहीं से उसकी क़यामत तो शुरू हो जाती है, उसके लिए तो वही क़यामत है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह ताला के नज़दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना और क़यामत का जौन-सा है नज़ूल होना, वो भी बिल्कुल ही आस-पास की चीज़ है, इसी वजह से इस तरह से कहा गया। यहाँ पे सूरह अज़-ज़ुख़्रुफ़ जौन-सी है, वो मुकम्मल होती है और सूरह अत-तुख़ान जौन-सी है, उसको हम शुरू करते हैं और सूरह तुख़ान जो है ये मक्की सूरत है और इसके अंदर जो है 3 रुकू हैं और 59 आयत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम और ये कसम है इस वज़ाहत वाली किताब की यानी मुबीन किताब की, रोशन किताब की। यकीनन हमने इसे बाबरकत रात में उतारा है। ज़्यादातर जैसे कि कुरान पाक का जो नुज़ूल होना शुरू हुआ था, वो शब कदर में नाज़िल किया गया था। अब इस बात के जो हैं मतालिब इस तरह से कहते हैं कि शब कदर रमज़ान के अशराए आखिर की ताक रातों में से एक रात होती है, जैसे कि सहीह बुखारी की हदीस 2020 में बयान है। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने जैसे सूरह अल-बकरा में जिस चीज़ को डायरेक्टली खुद बयान उसमें किया, एक तो सूरह अल-कदर में भी और सूरह अल-बकरा में भी है। तो पहले चूँकि सूरह अल-बकरा आती है, इसके अंदर है शहर रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, तो इसी महीने में कुरान नाज़िल किया। फिर इसके बाद है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र कि इसके हमने अंदर जो है कुरान पाक को शब कदर में नाज़िल फरमाया। यहाँ इस सूरत की में कदर की इस रात को बाबरकत करार दिया गया है। इसके बाबरकत होने में क्या शुबा हो सकता है? एक तो इसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, दूसरे इसमें फ़रिश्तों और रूहों का नुज़ूल जौन-सा है, यानी कि रूहुल अमीन का जो है नुज़ूल होता है। तो तमाम वाक़यात का जो आगे आने वाले होते हैं, उनका फ़ैसला किया जाता है। लिहाज़ा
इस की इबादत जो-सी है वो बेहतर है, इसको एक तकरीबन 1000 साल की रातों के बराबर करार दिया जाता है। और अलबत्ता ये है कि कुरान पाक वक़्तन-फ़वक़्तन 23 सालों की मुख्तलिफ दौर में इसको नाज़िल किया जाता रहा और इसी तरीके से शब कदर जो है वो रमज़ान के महीने में है, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा में फरमाया। अब जो ये बात है ना कि कुरान का नाज़िल होना, यहाँ से शब कदर का भी पता चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने शब कदर को शब बारात को समझ के उसको मनाना शुरू कर दिया। तो शब कदर जो है वो तो रमज़ान के अंदर है, क्योंकि कुरान का नाज़िल होना शब कदर में है और इसी तरीके से अल्लाह ने दूसरी जगह पे कहा कि इस रमज़ान में जो है कुरान नाज़िल हुआ है, तो उसका शुरू होना भी और उस तरह से बाकायदा तो बात ये है कि तो वो तो फिर जो है शब कदर तो रमज़ान में हुई। तो लिहाज़ा कुरान से जो चीज़ साबित हो रही है उसको हमें देखना चाहिए। तो यहाँ जिस बाबरकत रात का ज़िक्र किया गया है, अल्लाह ताला वो सबको नसीब करे, उसमें इबादत कबूल हो और इंसान जो है उसकी मुश्किलात भी दूर हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो बेशक हम डराने वाले हैं, इस रात में हर एक को मज़बूत काम का फ़ैसला किया जाता है। और इसी रात में हर काम का मज़बूत काम का फ़ैसला किया जाता है। हमारे पास से हुक्म होकर के हम ही हैं कि रसूल बनाकर भेजने वाले, यानी कि अल्लाह ताला के पास से ही जो है तमाम फ़ैसले किए जाते हैं, वो मज़बूती के साथ जो कि इस कायनात में नज़र आते हैं और रसूल भी जो मुकर्रर किया जाता है, अल्लाह ताला ही करते हैं। आपके रब की मेहरबानी से वो वही है सुनने वाला और जानने वाला। और जो आसमान और ज़मीन का रब है, जो कुछ इसके दरमियान है, अगर तुम यकीन करने वाले हो, तो इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही ज़िंदा करता है और मारता है, वही तुम्हारा रब है, तुम्हारे अगले बाप-दादा का। बेशक वो शक में पड़े खेल रहे हैं। कौन? किनकी बात हो रही है? अल्लाह ताला की। तो जो कुदरत की बात हो रही है, वो तो हम जानते हैं कि उनके बारे में बात की जाए और वो इससे भी ज़्यादा ताकत और कुदरत रखने वाले जितना कि वो बता रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो शक में पड़े हुए हैं, यानी कि जो लोग अल्लाह को नहीं मान रहे, उनको उनकी कदर व मंज़िलत के साथ, उनकी ताकत के साथ कि उनको किसी भी पार्टनर की, किसी भी शिर्क की ज़रूरत ही नहीं है कि उनके साथ कोई शरीक खड़ा किया जाए। लेकिन जो लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे, तो वो क्या कर रहे हैं? वो शक में हैं और वो खेल रहे हैं, यानी कि अपनी दुनिया के खेल-तमाशों में मगन है, वो इस चीज़ पे सोचना ही नहीं चाहते कि वो क्या गलती कर रहे हैं। आप इस दिन के मुंतज़िर रहें कि जब कि आसमान पर ज़ाहिर धुआँ लाएगा। यहाँ पे जो दुखान की बात किया गया है ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फर्तक़िब यौम तातिस समाअ बिदुखानिम मुबीन, कि ये जो दुखान का ज़िक्र किया गया है, जो कि इस सूरत का नाम भी है। तो बात ये है कि ये दुखान जो है कि जब आसमान पर धुएँ का ज़हूर होगा, तो जब ये ओज़ोन लेयर जो-सी है हमारी इर्द-गिर्द मौजूद है, वो भी एक गैस की ही बनी हुई है, एक समझ लें कि धुएँ की किस्म की बनी हुई है। जब ये तबाह होने लगेगी, तो आसमान का टूटना धुआँ-धुआँ होना नज़र आएगा। अल्लाह ताला ने जब आसमान को कायम किया था, तब भी वो धुएँ की शक्ल से ही इसको आज की शक्ल में बनाया, जो कि हमें नज़र आती है। जब उस चीज़ का तबाह होना होगा, तो वो उसी तरीके से धुएँ की शक्ल में नज़र आएगा कि जैसे कि कोई बादलों का धुआँ हो या उस तरह से वो जिस भी टाइप का धुआँ होगा, तो वो उस वक़्त उसकी तबाही का वक़्त होगा, यानी कि इसके ऊपर जो है अज़ाब के वाले मामलात की ज़िक्र किए, यानी आसमान के ऊपर बादल की शक्ल में भी अज़ाब आ सकता है और यहाँ ये कि इस ओज़ोन लेयर की जो है शक्ल में टूटना। अब यहाँ पे जो इस आयत का यहाँ पे तज़किरा है, वो ये है कि जब जिस दिन तब ये काम भी होगा, चाहे वो क़यामत के दिन हो, तब भी जो है क्या होगा, वो उस वक़्त के लोगों के लिए अज़ाब होगा। और अगर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में या ये कि इनकी कौम को जो डराया जा रहा है और उनको ये बताया जा रहा है कि अगर ये अज़ाब का हिस्सा से कोई बात आ जाए, तो तब भी आसमान के ज़रिए भी जो है वो धुएँ के मतलब ये कि अज़ाब जो-सा है वो उतारा जा सकता है, यानी कि कोई बादलों के ज़रिए और तूफ़ान ला करके या इस तरीके से, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत है। तो जो लोगों को घेर लेगा, ये दर्दनाक अज़ाब है और कहेंगे कि हमारी रब ये आफ़त हमसे जो है दूर कर दे और हम ईमान कबूल करते हैं। तो बात ये है कि अल्लाह ताला से उस वक़्त दुआ माँगेंगे जब अज़ाब शुरू हो जाए, तो उस वक़्त दुआएँ तो कबूल नहीं होती, क्योंकि ये बारहा अल्लाह ताला ने ये अपना असूल बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला के कुछ कायनात में असूल हैं। हाँ, अलबत्ता जो अपने मानने वालों के लिए अल्लाह ताला मोजज़ात करते हैं, कायनात के असूलों को साइड पे कर देते हैं, लेकिन ना मानने वालों के लिए, जिनको पूरा वक़्त दे दिया गया होता है कि जब अज़ाब का हुक्म आ जाता है, तो उस वक़्त वहाँ से वापसी नहीं होती है। और ये कि अल्लाह ताला किसी भी जगह से, आसमान हो, ज़मीन हो, वहाँ से अज़ाब दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि तज़किरा आसमान पे धुएँ का है, तो लिहाज़ा ये बात यहाँ पे बयान हुई। तो ये है कि उनके लिए नसीहत कहाँ है? और तब वो कहेंगे ईमान कबूल करते हैं, तो उसका सवाल पूछा जा रहा है कि उनके लिए नसीहत कहाँ है? हालाँकि खोल-खोल कर बयान करने वाले पैगंबर उनके पास आ चुके हैं। देखिए, अगर कोई एक स्टूडेंट भी दुनिया में आम तौर के ऊपर उसका पेपर हो, रिज़ल्ट शीट अनाउंस कर दी गई हो, सॉरी डेट शीट अनाउंस कर दी गई हो, अनाउंस हो जाने के बाद पता हो कि इस तारीख को पेपर है, उसकी तैयारी ना की जाए या ये कि पेपर मिस कर दिया जाए और रिज़ल्ट वाले डे पे जाकर के ये कहा जाए कि पूरे नंबर मिल जाएँ। तो जिन लोगों ने मेहनत करके पेपर दिया है, तमाम मुश्किलें बर्दाश्त करके वो उसके अंदर आए हैं, तो ये फिर उन लोगों की मेहनत का क्या होगा? कि जिसने नहीं किया उसको जो है वो नंबर दे दिए जाएँ, उसको पास कर दिया जाए, तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी की बात हो जाएगी। तो लिहाज़ा अल्लाह ताला ये चीज़ बयान कर रहे हैं कि जब एक चीज़ को बताया जा रहा था, तैयारी करवाई जा रही थी, जब वो नहीं दिए देने के ऊपर या उसके ऊपर आए, तो अब ये जो है किस तरह से कहा जा रहा है कि मतलब ये कि नसीहत जो-सी है वो उनको की जाती। तो ये नसीहत तो इसी किताब के अंदर है जो की जा रही है, फिर भी उन्होंने इसे मुँह फेरा और कह दिया कि सिखाया पढ़ाया हुआ दीवाना है। यानी कि जो अगर अक्ल की बात भी है, तो उसको मानने की बजाय उन्हीं की जो उनकी जो इल्म है, जो उनको मिला है वही, उसका भी मज़ाक उड़ाया गया और साथ में उनको भी दीवाना कह दिया गया कि इनकी बातें दीवानी हैं। यानी कि जो उनके सामने दुनिया एस्टेब्लिश हुई हुई होती है, 1 नस्ल, 2 नस्ल के तहत अगर उनके ऊपर कोई अज़ाब नहीं आया और वो इसी तरीके से वो चलते चले जा रहे हैं, तो वो इसी को अपनी कामयाबी दुनिया समझ रहे हैं कि उनके पास तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। हालाँकि वो एक टेस्ट है। अल्लाह ने दुनिया जो दी हुई है वो एक टेस्ट है। अल्लाह ताला उसकी भी सख्त पकड़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने रहमत की भी है कि इसी नेमतों के साथ हिदायत की नेमत भी मिल जाए, तो इंसान उसको नहीं समझता, उल्टा वो मज़ाक उड़ाने शुरू हो जाते हैं और जो नबियों के साथ करते हैं, हम मज़ाक को थोड़ा-सा दूर कर देंगे, तुम फिर अपनी इसी हालत पर आ जाओगे। तो जब अज़ाब दूर होता है, तो वो फिर दोबारा अपनी दुनिया के खेल-तमाशों में जो है वो चले जाते हैं और जिस दिन हम सख्त पकड़ पकड़ेंगे, फिर एकदम से फिर वो पकड़ का दिन आ
आ जाता है, तो बिल-यकीन हम बदला लेने वाले हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक-एक बात नोट की जा रही है और इस चीज़ का बदला लिया जाएगा। यकीनन हमसे पहले जो है कौम फ़िरौन को भी आज़मा चुके हैं, जिनके पास अल्लाह का बाइज़्ज़त रसूल आया कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो। यकीन मानो कि मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ और तुम अल्लाह के सामने सरकशी ना करो। मैं तुम्हारे पास खुली दलील लाने वाला हूँ। तो मैंने अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ, इससे तुम मुझे संगसार ना करो। तो ये जिन का जो बाइज़्ज़त जो बाइज़्ज़त रसूल का जो है अलैहिस्सलाम का जिनका तज़किरा यहाँ पे हो रहा है, ये इनसे मुराद जौन-सा है वो मतलब ये कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है जिनकी मूसा अलैहिस्सलाम का जो मतलब कौम बनी इसराइल से जिसे फ़िरौन ने गुलाम बना रखा था। तो उन्होंने उनकी आज़ादी का जो है मुतालबा किया था। तो ये उनका नाम लिए बगैर जो है ज़िक्र यहाँ पे किया गया कौम फ़िरऔन का जिस तरह से ज़िक्र किया गया। तो ये कि उन्होंने जब इस तरीके से यहाँ पे कहा, तो अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे दूर ही रहो। फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की कि ये सब गुनाहगार लोग हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से मतलब ये कि उनको मारने की कोशिश की यानी संगसार करने की बातचीत की जिसका यहाँ पे कि ज़िक्र किया जा रहा है और क्योंकि जो दावत तबलीग उन्होंने की थी उसके फ़िरऔन के दरबार में जाकर के तो फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल की धमकियाँ दी थी और हर तरीके से अच्छे तरीके से बात करने पे भी उनके साथ जो है मतलब झूठ और फ़रेब का भी काम किया था कि जब अज़ाब आता था उनके ऊपर छोटे-छोटे अज़ाब आते थे, तो तब वो कहते थे कि हम बात मान लेंगे तो ये अज़ाब दूर कर लो और अगर कोई तकलीफ़ आती थी तो कहते थे इन लोगों की वज़ह से आई है। मतलब वो बिल्कुल मानने वाली बात राह रास्त पे नहीं है, उनको बहुत टाइम दिया गया था। तो फिर जब उन्होंने एंड में उनको संसार करने की बात की, तो फिर उन्होंने ये उनके साथ खिताब किया और जब ये कि हद मुकर्रर हो जाती है और जब वो लोग बिल्कुल ही सरकश होने पे आ जाते हैं, तो तब अल्लाह ताला हिजरत का या इस तरीके से कि इन पे जो अज़ाब आएगा उसका हुक्म देते हैं। आनन-फानन किसी नबी की दावत के ऊपर अज़ाब या उनका कह देना कि किसी कौम का इस तरह नहीं आता, पूरे के पूरे उनके अमाल होते हैं और उनका पूरा ये चीज़ें रिकॉर्ड में रखी जाती हैं। तो फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की कि ये सब गुनहगार लोग हैं। हमने कह दिया कि रातों-रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा और दरिया को साकन छोड़कर चले जाएँ। बिलाशुबा ये लश्कर गर्क कर दिया जाएगा और कितने ही बागात और चश्मे छोड़ गए और खेतियाँ और राहत बख्श ठिकाने और आराम की चीज़ें जिनमें ये ऐश कर रहे थे। इसी तरह से वो न हो गया और हमने उनका वारिस दूसरी कौम को बना दिया। सो इन पर ना तो आसमान और ज़मीन रोए, ना इन्हें मोहलत मिली और बेशक हमने बनी इसराइल को रुसवा-कुन अज़ाब से निजात दी। यदि फ़िरौन के ज़ुल्म-ओ-सितम से फिलवाक़या वो सरकश और हद से गुज़र जाने वालों में से था। हमने दानिस्ता तौर पर इन्हें बनी इसराइल को दुनिया जहाँ वालों पर फ़ोक़ियत दी। तो जो भी उनके साथ मामला हुआ चूँकि वो बहुत बेहद सरकश किस्म के थे, तो अल्लाह ताला ने बयान किया कि जब कोई अल्लाह के रास्ते से उल्ट चलता है, तो आसमान और ज़मीन और दुनिया की कोई भी चीज़ उनके लिए जो है वो दिल में दर्द नहीं रखती और ये आसमान और ज़मीन के रोने से मुराद ये है। और अलबत्ता जो अल्लाह के साथ चलते हैं, अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात और तमाम जो है कायनात उनके साथ खड़ी होती है, चाहे वो किसी को नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन ये कि फ़िल वाक़या जौन-सी है और आखिरकार उन्हीं की जो है फ़तह होती है। तो यहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने जो हद से गुज़र जाने वाले लोग थे, उनका तो तबाही का बयान करने के बाद बताया कि उस वक़्त की जो मुसलमान कौम थी, बनी इसराइल, अल्लाह ताला ने तमाम जहानों पर उनको फ़ोक़ियत दी थी।
और उनको जो है बुलंद मर्तबा अता किया क्योंकि ईमान की वजह से। और हमने उन्हें ऐसी निशानियाँ दी जिसमें सरी आज़माइश थी। ये लोग तो वही कहते हैं, ये तो यही कहते हैं कि आखिरी चीज़ यही हमारा पहली बार दुनिया से मर जाना है और हमने दोबारा उठाए नहीं जाएँगे। अब ये जो आखिरी कौल है, ये तो ज़्यादातर तो मुशरिकीन मक्का का इस तरफ जो है इशारा था और इसी तरीके से कुफ़ार मक्का की तरफ, ये और यही चीज़ फ़िरौन जो उनसे और इन आयात से अल्लाह ताला ने जो एक्सप्लेन किया कि फ़िरौनियों का जो मतलब जिस तरह से मज़हब था और जो तौर तरीका था और जो अपने नबी के साथ जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना सिर्फ़ बनी इसराइल को जो है बचाने के लिए आए थे और उनकी तबलीग जो-सी थी अल्लाह की राह की तरफ बुलाना जो था वो फ़िरौनियों के लिए भी था। लेकिन ये कि फ़िरौन के पीछे लग के उसकी कौम ने जो अपना तौर तरीका बनाया हुआ था और जिस राह के ऊपर वो लोग चल रहे थे, उन्होंने इस चीज़ की तकज़ीब की और उनका अंजाम क्या हुआ? तो यही चीज़ एक साथ जो है अहले किताब और कुफ़ार मक्का को चीज़ बताई जा रही थी क्योंकि कुफ़ार मक्का तो वैसे दोबारा ज़िंदगी के कायल ही नहीं थे, लेकिन जो अहले किताब में से भी कुछ गिरोह ऐसे थे कि जो कि इस चीज़ को अब छोड़ चुके थे कि ज़िंदगी जो है मौत जो है बादस मर्ग जो है वो कोई एक हकीकत है, यानी आखिरत की ज़िंदगी का इनकार करते थे। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने उस चीज़ का उनको ये जवाब दिया। उसके बाद ये कि ये एक साथ इस चीज़ का जवाब मिला कि रसूल की तकज़ीब कर देने की वजह से और इस तरीके से उनके साथ धोखा करना जो कि मतलब उनकी वही के साथ भी और फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी के दर पे हो जाना जैसे कुफ़ार मक्का कर रहे थे। तो फिर उस फ़िरौन के साथ क्या हुआ? कि उसका आज कहाँ नामो-निशान मिलता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया और हमने इन्हें ऐसी निशानियाँ दी जिनमें से भी आज़माइश थी। यही तो कहते हैं कि आखिरी चीज़ कि हमारा पहली दुनिया से मर जाना है और हम दोबारा उठाए नहीं जाएँगे। तो इस चीज़ का जवाब उन दोनों फ़िरकों को मिल गया। अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप-दादाओं को ले आओ। तो जिस तरह की ये तकज़ीब करते हैं, इसी तरीके से जैसे कि कुछ जगहों पे और बाकी कौमों ने अपने नबियों की तकज़ीब की तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब बताया है। तो क्या ये लोग बेहतर हैं या तुब्बा की कौम के लोग जो इनसे पहले भी थे? यानी अब अल्लाह ताला ने जो इनका ये मुतालबा है उसके मुताबिक वो कौम बताई जिस कौम ने ऐसी कोई हरकत की होगी और हमने इन सबको हिला कर दिया, यकीनन वो गुनाहगार थे। तो जो तुब्बा की कौम वाले थे उनकी जो भी मतलब कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कौमों का वैसे ज़िक्र किया जैसे कुफ़ार मक्का के साथ जो भी मुख्तलिफ सूरतों में बयान है उनकी बातें, उन चीज़ों को बयान करने के बाद जैसे आद और समूद वगैरह, तो ये ताकत में बहुत बेहतर थी और इनके इलाके जो उनसे थे ये तो कुफ़ार मक्का के पास भी थे जिनसे गुज़र के जाते थे। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तफ़ासील जो वो बयान की हैं कि अगर ये कौमें इस वजह से हलाक हुई थी कि उनको अपनी जो चीज़ें मिली थी दुनिया में और जो सलाहियतें मिली थी उनके ऊपर भी ईमान था और ये लोग अल्लाह ताला की नबी की जो दावत है उसको खातिर में नहीं लाते। तो अल्लाह ताला ने क्या बयान किया कि ये लोग या तुब्बा की कौम के लोग जो उनसे पहले, यानी कि क्या ये लोग बेहतर हैं या फिर वो लोग जो पहले के, यानी कि ये जो इतने ताकतवर जो गुजरे हैं और जो इनसे भी पहले थे, इन सबको उनको क्या किया गया? हलाक कर दिया गया। यकीनन वो गुनाहगार थे। हमने ज़मीन और आसमान और उनके दरमियान की चीज़ों को खेल के तौर पे पैदा नहीं किया, बल्कि हमने इन्हें दुरुस्त तदबीर के साथ ही पैदा किया है। लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। यकीनन फैसले का दिन इन सब का तयशुदा वक़्त है। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ये जो प्लानिंग बता रहे हैं, ये कोई ऐसे ही ज़िंदगी गुज़ारने के लिए दुनिया पे नहीं आए। ये तो बाकायदा एक प्लानिंग के तहत ज़मीन और आसमान ऐसे बने हैं। प्लानिंग के तहत इंसान को ज़िंदगी दी जाती है। सब इंसानों का आमाल नोट किए जाते हैं। ये है असल ज़िंदगी। ये खेल-तमाशा मतलब ज़िंदगी और फिर ये शादी-ब्याह और जो ज़िंदगानी के सारे तौर तरीके हैं और जिन पे इंसान ज़िंदगी गुज़ारता है, ये इसके लिए नहीं मिली। ये इस ज़िंदगी को गुज़ारने के साथ नेमतें दी गई हैं ये सब चीज़ें। तो यकीनन फैसले का दिन उस सब का तयशुदा वक़्त है, तो फैसले का दिन जो-सा है उससे उसको याद कराया जा रहा है कि एक रिज़ल्ट डे भी होगा, जब इन तमाम चीज़ों का उस दिन फैसला होगा। इस दिन कोई भी दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी काम नहीं आएगा, ना उसकी इमदाद की जाएगी। दुनिया में दोस्ती हो, बहन-भाई के हो या अपनी औलाद, इन चीज़ों के ऊपर, मालो-दौलत के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर इंसान का बड़ा फ़ख्र होता है। तो बात ये है कि उस दिन इस तरह के रिश्ते जो यहाँ पे दुनिया में इमदाद करते हैं, वहाँ पे मदद इनसे नहीं मिलेगी। मगर जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो जाए, वो बड़ा ज़बरदस्त रहम करने वाला, तो मदद किसको मिलेगी? जिस पे अल्लाह की मेहरबानी होगी, तो उसको मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बेशक तोहर का दरख्त गुनाहगार का खाना है और जो मिस्ले तिलछट, यानी तेल के ऊपर जो एक झाग सी आती है, बड़ी शदीद किस्म की गर्म तेल जब गर्म होता है ना, तो उसका गर्म होना पानी से भी तेज़ होता है। तो वो पेट में खोलता रहता है, जैसे गर्म पानी खोलता है। इसे पकड़ लो, फिर घसीटते हुए जहन्नुम के बीचों-बीच ले जाओ। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो इंसान कुफ़्र करता है, तो उसके साथ वहाँ क्या सलूक होगा, उसके साथ मेहमान नवाज़ी उसकी कैसी होगी और जो है जब वो खाने को खा लेंगे, तो जो पेट में उसको किस तरह से तकलीफ़ होगी। फिर इसके सर पर सख्त गर्म पानी का अज़ाब बहाओ। इसे कहा जाएगा कि चखता जा, तू बड़ा इज़्ज़त वाला और बड़े इकराम वाला था। यानी दुनिया में बड़ी इज़्ज़त दी गई थी। तो इसका पता चला कि दुनिया में जो कुछ भी दिया गया होता है, बड़ा बड़ा ओहदा, दौलत, इज़्ज़त, जिसके ऊपर इंसान इस तरह से समझता है, तो ये सब का सब क्या है? एक जो है इंसान का इम्तिहान है। तो फिर यही चीज़ है जिस पर तुम शक किया करते थे। और ये इम्तिहान क्यों बना? ये इसलिए बना कि इन चीज़ों को देखते हुए इंसान अगर अल्लाह की राह पे चलने से रुका, अल्लाह के रास्ते की तरफ ना आया, तो ये उन सरदारान मक्का को भी ये आयत से बताया जा रहा था और आज के दौर में भी ये उन तमाम लोगों के लिए है कि जो दुनिया की ज़िंदगी को बड़ा ये समझ लेते हैं कि अल्लाह इनसे राज़ी है, तभी तो उनको ये सब कुछ मिला है। लिहाज़ा उनके अंदर कोई गलती नहीं है, यानी कि अल्लाह के दीन पे अमल ना करें। तो ये होशियार हो जाएँ कि अल्लाह ताला की ये आयत जो हैं, वो ये बयान कर रही हैं कि ये चीज़ें किसी को भी अज़ाब से नहीं बचाने वाली। ये दुनिया का खेल-तमाशा और टेस्ट है, ठीक है? ये वो चीज़ है जिसमें तुम शक किया करते थे। बेशक अल्लाह से डरने वाले अमन और चैन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में, बारीक दबीस रेशम के लिबास पहने हुए आमने-सामने बैठे होंगे। इसी तरह है और हमने बड़ी-बड़ी आँखों वाली हूरों से उनका निकाह कर देंगे, दिल जमी के साथ। वहाँ हर तरह के मेवों की फ़रमाइश करते होंगे और वहाँ वो मौत का ज़ायक़ा
ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ ہاں پہلی موت جو کہ وہ مر چکے، یعنی کہ جو وہ موت کی جو دنیا میں گزر چکے اور انہیں اللہ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا، یہ صرف آپ کے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی، اور ہم نے قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب یہ بھی منتظر ہیں تو آپ بھی تو اب منتظر رہے، یہ بھی منتظر ہے، یعنی کہ جو بات بیان کر دی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہوگا تو انسان جنت میں جائے گا، اور جو دوزخ میں جانے والے اعمال ہیں وہ تو انسان غلطیوں پہ غلطی کیے چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورت جو ہے اپنے آخری پیغام کے ساتھ کہ اب انتظار کریں، یعنی دونوں گروہ جو اللہ والے ہیں اور جو کہ اللہ کے خلاف ہیں، تاکہ ان کو جو ہے پتہ چل جائے کہ اصل جیتنے والا کون ہے۔ بات یہ ہے کہ حدیث میں جنت میں جانے کی بابت میں اس طرح سے آیا ہے کہ یہ بات جان لے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ دیکھیے اس بات سے اس حدیث کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ تو پھر اس کے اوپر جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ کو بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل میں ڈھانپ لے۔ یہ حدیث ہے صحیح البخاری کی 6463 اور صحیح مسلم کی 2818۔ تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ اپنا عمل روک دے، عمل تو ہم نے کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن بات ہے کہ ہمارا عمل جون سا ہے نہ تو وہ پرفیکٹ ہے، نہ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے جائیں گے، ہم اپنی کوشش تو ضرور کریں گے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے دین میں جو کرنے والے کام ہے ان کا حکم ہے، کوئی بھی عمل ساقط نہیں، جس چیز کا جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور عمل کر کے دکھایا وہ وہی ہمارا دین ہے۔ اور بات یہ کہ اب یہ کہ اس کے بعد ہم نے اپنی کوشش کر لی، لیکن یہ جو اعزاز ہے جنت میں جانے کا یہ اللہ تعالیٰ اپن کا کرم ہوگا تو ہی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ اور یہاں پہ سورہ الدخان جو سی ہے مکمل ہوتی ہے، اور سورہ الجاسیہ جو سی ہے شروع ہوتی ہے، یہ بھی ایک مکی صورت ہے، اس کے 4 رکوع ہیں، 37 آیات ہیں، 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ کتاب حامیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے، آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور جو تمہاری پیدائش اور جانوروں کے پھیلانے میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ کے آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ انسانوں کو پیدا فرمایا یا جانوروں کو پیدا فرمایا اور جو کچھ اس دنیا میں سلسلے رکھے، یہ سب نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ بس اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد ایک کس پر ایمان لائیں گے؟ ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر جو آیتیں اللہ کے سامنے پڑھی جاتی ہوں سنے اور پھر بھی غرور کرتا ہو۔ یعنی کہ انسان کس چیز پہ غرور کرتا ہے؟ ہر چیز، اور اس کا اپنا آپ بھی اللہ نے بنایا ہے، اور اگر کوئی نعمتیں مل گئی ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ غرور تکبر تو وہ کرے کہ جس نے جو اس چیز کا مالک ہو، مالک تو اللہ ہے، انہوں نے وقتی طور کے اوپر کسی کو چیز کو دیا، اور سب چیزیں جو دے رہے ہیں یا کسی کے پاس نہیں ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے تو اللہ کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح اڑا رہے کہ گویا اس نے سنی ہی نہیں، تو یہ بات کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو، یعنی کتنی بڑی ہستی کی بات کو کوئی انسنا کر دے۔ دنیا میں آپ جس کے پاس طاقت ہو، حکومت ہو، اگر وہ بلائے اور اس کی محفل میں ایک دفعہ نہ جائیں، 2 دفعہ نہ جائیں تو کیا سلوک ہوگا؟ وہ کیا تنگ آ کر کے اگلے بندے کو وہاں سے زبردستی اٹھوا کر کے جو ہے وہ اپنے سامنے کھڑا نہیں کروا سکتا کیا؟ اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ کوئی حکم دے کہ بات اس طرح سے کی جائے، جس کے پاس طاقت ہو، وہ بادشاہت ہو یا کوئی حکومت ہو، تو اگلا انسان اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اگر وہ قانون ہے یا کیا بات ہے، تو یہ کہ ان کے پاس وہ چونکہ اس وقت وہ طاقت ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر عمل کروا زبردستی طریقے سے بھی عمل کرواتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ تو صرف اپنی بات کو سنا کر کے انسان کو چوائس دیتے ہیں کہ انسان اس راہ پہ آئے اور اپنا اچھا بھلا سمجھے اور عمل کرے۔ تو اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جب دنیا میں اگر کوئی ان سے چھوٹی والی طاقت جو ہوتی ہے اس کی بڑی انسان قدر و منزل کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اور ان کی عہدے کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ نیک سلوک کیے جاتے ہیں، تو یہاں جو اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں اور زمین کے مالک ہے، ہر چیز کے مالک ہے، ان کے آگے غرور اور ان کی بات کو انسنی کرنا، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتے ہیں تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، تو یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، اور ان کے پیچھے جو ہے رسوائی کی مار ہے، اور ان کے پیچھے دوزخ ہے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا، اور جو کچھ نہ ان کے وہ کام آئیں گے جو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا ہے، یعنی جن ہستیوں کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ ان کے کام نہیں آئیں گے۔ کارساز جو ہے یعنی کہ انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے جن لوگوں کے لیے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا، ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا اور اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلی، تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ، اور زمین اور آسمان کی چیزوں کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ تو جو غور کریں کہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے۔ آپ ایمان والوں کو اسے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے اور اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے دے۔ یعنی کہ اگر کسی کو یہ چیز جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور جو بھی دنیا میں جو چلتی ہیں کشتیوں سے لے کر کے باقی تمام باتیں بھی، اور اس کے اوپر کوئی غور نہیں کرتا، نہیں مانتا ان ساری باتوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والوں سے کہیں کہ ان لوگوں سے درگزر کریں، ان کو اگنور اب کریں، کیونکہ یہ اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کا بھی ایک دن آئے گا کہ جس میں اللہ آ کے سامنے موجود ہوں گے اور ان
इनको इनके तमाम किए हुए चीज़ों की सज़ा मिलेगी। तो जो नेकी करेगा अपने ज़ाती भले के लिए, जो बुराई करेगा उसका वबाल उसी पर है। फिर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। यकीनन हमने बनी इसराइल को किताब, हुकूमत और नबूवत दी थी। हमने इसे उन्हें पाकीज़ा और नफ़ीस रोज़ियाँ दी थी, यानी आसमान से रिज़्क उतारा था और उन्हें दुनिया पर फ़ज़ीलत दी थी। यानी कोई किसी और कौम के साथ अल्लाह ने ऐसा सलूक नहीं किया, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ईमान लाए थे, उनको मुश्किलों से निकलना पड़ा। बहुत ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी हर लिहाज से। चाहे वो कम थे, 313 थे, तब भी उन्होंने वो अल्लाह की राह में जहाद करके दिखाया है और हर मुश्किल से गुज़रे हैं। उनके लिए तो आसमान से कोई रोज़ी नहीं उतरी, ना ही उनको इस तरह से हुआ। तो बात ये है कि ये जो फ़ज़ीलत मिली है सिर्फ़ इसी नस्ल को मिली, इसी बनी इसराइल के अंदर जो रसूल उतारे गए उनको अल्लाह ने दी, ताकि इनकी ढारस होती, ताकि अल्लाह के दीन पे ज़्यादा अमल करते। अल्लाह ने ये बात इसलिए नहीं बयान की कि जी इनको चुन लिया है, तो अब ये इस तरह से बात है। जब किसी को चुना जाता है, उसको बड़ा टास्क दिया जाता है, उस टास्क को उसने करके दिखाना होता है। वो इस वजह से नहीं चूज़ किए गए कि वो इस चीज़ को एन्जॉय करते हैं, क्योंकि दुनिया तो टेस्ट है। इस टेस्ट के साथ उनको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी दी गई थी, लेकिन उस ज़िम्मेदारी को उन्होंने नहीं निभाया और यही बात आगे कुरान पाक में आ रही है कि हमने उन्हें दीन की साफ-साफ दलीलें दी। फिर उन्होंने अपने पास इल्म के पहुँच जाने के बाद आपस की ज़िद की, तो बहस और इख्तिलाफ बर्पा कर डाला। तो जिन-जिन चीज़ों में इख्तिलाफ कर रहे हैं, उनका फैसला क़यामत वाले दिन ही जो है ना, अल्लाह ताला खुद जो है उनके दरमियान जो है खुद कर देंगे। फिर हमने आपको दीन की ज़ाहिरी राह पे कायम कर दिया, सो आप इसी पे लगे रहें और इनकी ख्वाहिशों की पैरवी में ना पड़ें। यानी कि जिन बनी इसराइल का जो सारा काम खराब हुआ है, वो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की वजह से है। तो पहले उनकी खराबी बयान हुई, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया कि सही दीन की राह क्या है, लिहाज़ा आपने ख्वाहिशों की पैरवी में नहीं पड़ना, नेक राह पे चलना है। और ये कि जो अल्लाह ने बता दिया, याद रखिए कि ये लोग हरगिज़ अल्लाह के सामने आपके कुछ काम नहीं आ सकते। समझ लें कि समझ लें कि ज़ालिम जो हैं लोग आपस में एक-दूसरे के रफ़ीक हैं और परहेज़गारों का रफ़ीक अल्लाह ताला है। और ये कुरान अब देखिए कि जो ज़ालिम लोगों का रफ़ीक जो-सा है वो आपस में एक-दूसरे के रफ़ीक होते हैं, एक-दूसरे को ज़ुल्म में इहसान के साथ मिल कर के वो काम करते हैं। तो परहेज़गारों का रफ़ीक अल्लाह है, तो अल्लाह ताला जो है सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो बनिस्बत किसी भी दोस्त के, क्योंकि वो साथ निभाने वाले और उनका वादा भी सच्चा है। ये कुरान लोगों के लिए बसीरत की बातें हैं और हिदायत और रहमत है। इस कौम के लिए जो यकीन रखती है। क्या इन लोगों का जो बुरे काम करते हैं, ये गुमान है कि हम इन्हें उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और नेक काम किए और उनका मरना जीना यकसा हो जाएगा? यानी अभी जो कुछ वो कर रहे हैं और आखिर में जब रिज़ल्ट निकले, तो इनको भी वही सब चीज़ें मिल जाएँ। तो बुरा है वो फ़ैसला जो वो कर रहे हैं। आसमान और ज़मीन को यानी कि जो लोग ये समझते हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह की राह में तकालीफ उठाई, ईमान लाए, तकालीफ उठाई, नेक अमल भी किए और अल्लाह के हवाले अपने तमाम अमाल अपने आप को भी कर दिया, तो उन लोगों का अमल अल्लाह के नज़दीक उन लोगों की जो कीमत है या उन लोगों का जो दर्जा है, वो उन लोगों के बराबर होगा कि जो लोग अल्लाह की बात नहीं मान रहे। ये तो इंसान खुद भी से देख सकता है कि जब इंसान किसी को कुछ ऑफ़र करता है, उसके रिश्तों में ऐसी चीज़ें हों, उसके घरों में ऐसी चीज़ें हों, कुछ जगहों पे ऐसी बातें हों, जो लॉ पे अमल करता हो, तो उसका क्या दर्जा है और जो ना अमल करता हो, उसको क्या मिलता है फिर दुनिया में? तो ये बातें तो सोचने वाली हैं इंसानों की। तो फिर फैसला करें कि अल्लाह ताला की तरफ वो जो है वो अल्लाह ताला ये क्या बातें बयान कर रहे हैं। आसमान और ज़मीन को अल्लाह ताला ने बहुत ही अदल के साथ पैदा किया, ताकि वो हर शख्स का जौन-सा है उसके किए का उसको काम का पूरा बदला दिया जाए, उस पे ज़ुल्म ना किया जाएगा। क्या आपने इसे भी देखा है जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है? यानी ऐसा इंसान जिसने अपनी बातों को, जो कुछ वो सोचता है, उसी पे बस वो अमल करता है। उसको इस चीज़ से नहीं मतलब कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। तो बावजूद समझ-बूझ के अल्लाह ने उसे गुमराह कर दिया है, उसके कान और दिल पर मुहर लगा दिया, अल्लाह माफ़ करे, और उसकी आँख पर भी पर्दा डाल दिया है। यानी कि वो हक बात को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते और वो गलत पे गलत फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मन-मर्ज़ी पे चल रहे हैं। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला की बात कौन हिदायत दे सकता है? क्या अब भी तुम नसीहत नहीं पकड़ते? तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से बयान फरमाया। अब इस कैटेगरी में तो अहले किताब भी आ जाते हैं कि जो अपनी बातों के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, अल्लाह की बताई हुई बात या नबी की बात को तो नहीं लेते और अपने उलमा की बातों पे या अपनी बातों पे चलते, जो उनको पसंद होती है। जब जी चाहते हैं अल्लाह ताला की आयत को बदल देते हैं। इसी तरीके से कुफ़ारे मक्का, जिनके पास के खेल तमाशे, कहानियाँ और कोई खालिस लॉजिक भी नहीं है, खाली सॉलिड हकीकत भी नहीं है, उस पे वो चल रहे थे। इसी तरीके से आज के दौर में भी जब अल्लाह के दीन को छोड़ के किसी अज़म, किसी कल्ट, किसी ग्रुप के पीछे चलेंगे, उनके ट्रेंड को फ़ॉलो करेंगे, तो वो भी यही गुनाह फिर करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि ये फिर नसीहत नहीं पकड़ते कि ये क्या चीज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी तो सिर्फ़ दुनिया की ही ज़िंदगी है। तो जब कोई अल्लाह को छोड़ कर के दूसरी जानिब जाता है, तो शैतान उनको यही राह-ए-रास्त बताता है कि आखिरत की कोई ज़िंदगी नहीं है और ये सारी बातें हैं, तो लिहाज़ा सिर्फ़ ये दुनिया की ज़िंदगी है। इसलिए फिर वो जो लोग होते हैं ना, वो दुनिया को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तभी तो वो फिर अपनी सोल जो-सी है, वो ऐसी हरकतें करते हैं कि वो शैतान के रास्ते की तरफ जाते हैं। हम मरते हैं और जीते हैं और हमें ना सिर्फ़ ज़माना ही मार डालता है। तो ये वक़्त के साथ होता है, यानी कि एक सिस्टम बना हुआ है इंसानों के साथ, जैसे जानवर मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो बस इंसानों के साथ ये होता है। दरअसल इन्हें इस चीज़ का कुछ भी इल्म नहीं है, ये तो सिर्फ़ कियास, अटकल से ऐसे ही अपने पास से फैब्रिकेटेड बातें बना रही हैं इन्होंने, तो इसी काम ले रहे हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने तो ज़िंदगी मकसद के लिए पैदा की, ये बात पहले आयत में बात बयान की है ना, और जब इनके सामने हमारी वाज़ेह रोशन आयतों की तिलावत की जाती है, तो इनके पास इस कौल के सिवा कोई बात नहीं होती। अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप-दादा को लाओ। तो वो इस चीज़ की बात करते हैं कि अगर तुम सच्चे हो, तो जो पहले लोग फ़ौत हो गए हैं, जो कि क़यामत वाले दिन के बाद जो है रोज़े महशर सब इकट्ठे पैदा किए जाएँगे, तो पहले हमारे बाप-दादा को लेकर, ताकि वो जो है वो ईमान ले आएँ। अब बात ये है कि इस आयत पे रुक करके देखिए, अगर किसी का मुतालबा ये है कि उसके बाप-दादा को ज़िंदा कर दिया जाए, तो अल्लाह ताला ने असूल बयान कर दिया कि अल्लाह का असूल है कि जो एक दफ़ा इस दुनिया से चला जाता है, ज़िंदगी गुज़ार के अपना टेस्ट दे करके, तो अब वो रोज़े महशर को ही पैदा होगा। दुनिया की कोई ताकत उसको दुनिया में वापस नहीं ला सकती। अंबिया हों, आम इंसान हों, अल्लाह का असूल यही है और हम यही देखते आ रहे हैं।
वरना अगर इंसान में किसी के पास ये ताकत होती या कोई ऐसी दुआ जो कोई मर गया हो, उसको ज़िंदगी के लिए उसकी दुआ की जाती और वो ज़िंदा होके के वापस लोगों में आ जाए, तो सबसे पहले तो इंसानों को चाहिए था कि वो अपने अंबिया के लिए दुआ करते कि वो मौजूद रहते, उनको वापस लाया जाता। लेकिन ऐसा वाक़या दुनिया में नहीं हो सकता। अल्लाह ने कुछ असूल बना दिए हैं इस ज़िंदगी के, इस कायनात को बनाने के, क्योंकि ये कोई खेल-तमाशा तो नहीं है। अब इसी बात को लीजिए, इसी ख्वाहिश को लीजिए, अगर ये ख्वाहिश किसी इंसान में पैदा हो जाए, तो शैतान कुर्बे क़यामत आने वाले वक़्त में वो यही चीज़ दज्जाल के साथ मिल कर के करेगा कि दज्जाल लोगों को, उनके मरे हुए रिश्तेदारों को, और वो जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे कि इस चीज़ को पैदा कर लो तो हम ईमान ले आते हैं, तो वो करके दिखाएगा। हालाँकि वो उनको जो उनकी जो भी कोई चीज़ डीएनए की उनसे लेकर के उनकी क्लोनिंग बनाना या उनके जैसा कोई बना के इंसान में शैतान दाखिल करके उनके सामने वो ले आएगा, वो असल इंसान ही होंगे। आज तो हम ये चीज़ देख सकते हैं, अब तो एक टेक्नोलॉजी भी बन चुकी है, एल टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आप सिर्फ़ किसी की तस्वीर देख लें, तो वो तस्वीर चलती-फिरती बातें करती है। और इसी तरीके से बहुत सी और टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, जिसके ज़रिए कि एक ज़िंदा इंसान या रोबोटिक या कोई भी चीज़ सामने आपके लाके खड़ी की जा सकती है, मुकम्मल उसी तरीके से जैसे कि कोई जिस इंसान को डिज़ायर्ड हो के वो उससे वो मुलाकात करे। तो बात ये है कि ये चीज़ें ईमान में लाने के लिए कोई दलील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ किसी को ज़िंदा करके सामने ले आना, अल्लाह ताला ने कहा कि आसमानों और ज़मीनों में से सबसे ज़्यादा आसान काम था इंसान को बनाना। बाकी चीज़ें उससे कहीं बड़ी चीज़ हैं। तो इस चीज़ के ऊपर अपना ईमान नहीं बेच देना चाहिए। तो दज्जाल के ज़माने में इस किस्म का मैजिक, इस किस्म की टेक्नोलॉजी एक नॉर्मल बात होगी, लिहाज़ा ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और ना ही ये कोई दलील है कि फलाँ लोगों को असल में, तो कोई लोग असल में ज़िंदा हो नहीं सकते, ये तो बात है। लेकिन जो चीज़ पैदा करके दिखाएगा दज्जाल, तो यहाँ पे इन बातों को समझ लेना चाहिए, वो असल नहीं होगी, वो भी नज़र का धोखा ही होगा। तो लिहाज़ा कभी भी अपने ईमान को इन चीज़ों का ताबे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी से जो लोग चीज़ें की जाती है, तो इस तरह जो इंसान फिर गुमराह होंगे, तो वो फिर उनका ठिकाना दोज़ख ही होगा, क्योंकि फिर वो इस चीज़ से निकल नहीं पाएँगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब दज्जाल का ज़माना आएगा और वो तरह-तरह की उसके पास जो सलाहियतें होंगी, उनको जो गलत राह में उसने इस्तेमाल करना है, दजल मतलब ये कि असलियत पे पर्दा डाल करके, जो हक होगा उसकी कोई वुकत नहीं उस वक़्त होगी, और जो बेवुकत चीज़ है, झूठ है, उसकी बड़ी वाह-वाह होगी और लोग उसी की तरफ लपकेंगे, उसी की तरफ जाएँगे। तो बात ये है कि फिर जो है वो लोग जो है मुसीबत में पड़ेंगे, तो लिहाज़ा उसके साथ बहस करना या उसकी टेक्नोलॉजी के मुज़ाहिरे देखने से बेहतर होगा कि इन तमाम चीज़ों को अवॉइड किया जाए, बहस-मुबाहिसे को भी, और मोमिन के लिए सबसे बेहतर होगा कि वो खामोशी से इन तमाम कामों से फ़ासले पे रहे। तो ये है वो बात जो वहाँ पे उस वक़्त वो वहाँ पे वो चीज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे ये चीज़ मतलब हम एज़ अ रिमाइंडर दजाल के तौर के ऊपर वो जो है कि ऐसा ना हो कि ऐसी बात करके कोई अहले ईमान वाले भी इस चीज़ के ऊपर जो उनसे है ना, अपने ईमान को ज़ाया कर दें। तो बात है कि अल्लाह ताला ही है जो किसी भी चीज़ को पैदा करते हैं और वो किसी भी चीज़ को मारते हैं। आयत का तर्जुमा भी यही कह रहा है कि आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें ज़िंदा करता है, फिर तुम्हें मार डालता है, तुम्हें क़यामत के दिन जमा करेगा। यानी कि ये बात वाज़िह होगी कि रोज़े महशर सब इंसान जमा होंगे, जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। और आसमान और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही की है, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, उस दिन अहले बातिल बड़े नुकसान में पड़ेंगे। आप देखेंगे कि हर उम्मत घुटनों के बल गिरी हुई होगी। हर गिरोह अपने नामा-ए-माल की तरफ बुलाया जाएगा। आज तुम्हें अपने किए का बदला दिया जाएगा, और ये हमारी किताब जो तुम्हारे बारे में ये है हमारी किताब जो तुम्हारे बारे में सच बोल रही है, सच-सच बोल रही है। तो इंसानों की जो नामा-ए-अमाल की गवाही है, जिनका किस्सा इसके अंदर बातें इनके अंदर आ चुकी हैं, वो तो कुरान भी गवाही देगा। और एक किताब होगी जो इंसान का सारा जो दिन में करते हैं, सारी ज़िंदगी में जो करते आए हैं, वो सब कुछ उसमें लिखा होगा। एक किताब वो है इंसान के नामा-ए-अमाल की, वो भी गवाही देगी। हम तुम्हारे अमाल लिखवाते जाते थे। बस लेकिन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए, तो उनको उनका रब अपनी रहमत तले ले लेगा। यही सरी कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफ़्र किया, तो मैं इनसे कहूँगा कि क्या मेरी आयतें तुम्हें सुनाई नहीं जाती थीं? फिर भी तुम तकब्बुर करते थे, तुम थे ही गुनहगार लोग। और जब ये कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है, क़यामत के आने में कोई शक नहीं, तो तुम जवाब देते थे कि हम नहीं जानते क़यामत क्या चीज़ है। हमें कुछ यूँ ही सा ख़्याल हो जाता है, लेकिन हमें यकीन नहीं। और अपने अमाल की बुराइयाँ खुल गईं, और जिसे वो मज़ाक कर रहे थे, उसने उन्हें घेर लिया और कह दिया गया कि आज हम तुम्हें भुला देंगे कि जैसे तुमने अपने उस दिन से मिलने को भुला दिया था। यानी कि रोज़े महशर को झूठा समझा था और इस दिन के ज़िंदा किए जाने को एक बात समझा था आम सी। तो तुम्हारा जो है अब ठिकाना जहन्नुम है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। ये इसलिए है कि तुमने अल्लाह की आयतों की हँसी उड़ाई थी और दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हें धोखे में डाल रखा था। आज के दिन ना तो ये दोज़ख से निकाले जाएँगे, ना इनसे अज़र और माज़रत कबूल की जाएगी, और अल्लाह ताला की ना की जाएगी। हाँ, बस अल्लाह ताला की तारीफ़ है जो आसमान और ज़मीन में तमाम जहानों का पालनहार है, और तमाम बड़ाई आसमान और ज़मीन की उसी में है, और वही गालिब और हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिस तरीके से जो है अपनी हिकमत और गलबे का इज़हार किया है, और साथ में ये भी चीज़ का फ़ैसला किया, तो जो चीज़ यहाँ बयान हो रही है, बिलाशुबा ऐसे ही होगी, लेकिन अल्लाह ताला से पनाह तलब करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी हालत से बचाए कि जब हम उस जगह पे खड़े होंगे, जबकि कोई इंसान किसी का काम नहीं आएगा, और ऐसी सूरत हाल होगी, तो हम हमसे इसी दुनिया में अच्छे नेक काम ले लें और हमारे गुनाह माफ़ कर दें। और यहाँ पे आमीन सुम्मा आमीन, हम यहाँ पे हमारा 25वां पारा जो-सा है वो मुकम्मल होता है जुज़। और यहाँ पे हम अल्लाह ताला से यही दुआ गो हैं कि जितनी भी हमने इसमें जो बातें पढ़ी, नेकी की रास्ते की तरफ जाने की, अल्लाह ताला वो उन तमाम नेकी के रास्तों की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, उनके ऊपर हम वाक़तन चलें, अमल करें, और रमज़ान
کے بعد بھی آنے والے 11 مہینوں میں بھی تمام امت مسلمہ کے لیے دعا ہے، اور یہ کہ جن برائی کے اور بدی کے اور جو خاص طور پہ شیطان کے جو وسوسات اور اس کی جو ہتھ کنڈے ہیں اس سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جن قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کے اندر یہ خرابیاں تھی، اس طرح وہ تکذیب کرتے تھے، وہ تمام عادات اور اعمال سے اللہ ہمیں پناہ دے تاکہ ہم ایسے بالکل نہ ہو جائیں، ہماری حفاظت کریں اور نیکی کے راستے پہ رکھیں، ہدایت کے راستے پہ رکھیں، اور ہماری دعاؤں کو قبول کریں، ہماری مشکلات ہم سے دور کریں، ہمارے وقت میں ہمارے کاموں میں برکت عطا فرمائیں، رزق میں، اور رزق میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، بیماریوں سے شفا، اولاد کا جنہوں نے اولاد کی درخواست کی کہ ان کے لیے اولاد کا ہونا، جنہوں نے درخواست کی کہ ان کی اولاد جو ہے وہ نیک راہوں پہ لگے، تو اللہ تعالیٰ سب کی پرابلمز آپ کے سامنے ہیں، سب جو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے حق میں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑے، گھروں کو جوڑے، اور اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور کرے، کسی کے جیسے جیسے انہوں نے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام سب کی دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اللہ سے یہی دعا ہے کہ اس آخری عشرے میں ہم سب کی مشکلات دور ہو اور رمضان سے ہم وقتاً فائدہ اٹھا سکیں۔ بعض دفعہ صرف آمین ایک دعا سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، وہ ایک دعا جو ڈھنگ سے مانگی گئی ہو، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا سے کے مانگی گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے مانگی گئی ہو، اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، تو لہٰذا اس دعاؤں کے موسم میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کریں، اللہ سے ہی دعا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے اور سب کو خیر اور عافیت اور امن امان سے رکھیں، تمام مسلمہ کو اور تمام عالم میں انسانیت کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت کی طرف لائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔